कोर्स निर्देशक डॉक्टर DC शर्मा सर, संयोजक डॉक्टर किशोर कुमार सर, संयोजन सचिव डॉक्टर वाजपेयी मैडम तथा आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य और सबसे अहम देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हमारे प्रयासों को सार्थक रूप देने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध, आज आप सभी का इस बौद्धिक सत्र में स्वागत एवं अभिनंदन है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विषय विशेषज्ञ के शैक्षिक व्यक्तित्व के परिचय हेतु आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुशीला। डॉक्टर सुशीला। Thanks, Dr. Meenakshi ji. And first of all, namaskar to everyone. And today we are having a nationally and internationally eminent academician with us, Professor Parvez Ahmed Abbasi ji. He is a retired professor and head Department of Sociology, near Narmad South, Gujarat University, South Surat. He is having a total 33 years teaching experience, and his specialization in social stratification, minorities, cultural and communication also. He has published more than 200 articles and research in reputed national and international journals, and edited book also. He has several major and minor research projects to his credit. He was awarded in summer school contemporary European politics and sociological classics and contemporary political problems at European University Institute, Florence in 1986. He is a member of the editorial board of several interdisciplinary international and national research journals. He has been associated with the Indian Sociological Society, Gujarat Sociological Society, and Uttar Pradesh Sociological Society. He organized several seminars and workshops at Surat during his headship. He actively participated in international conferences and seminars in India as well as abroad. And presented papers also. He has organized many sessions of ISA Research Committee 14 and ISA Research Committee 52, and several countries like Japan, Italy, Australia, Norway, Sweden, and Canada. And today we are feeling very privileged to have such a nationally and internationally eminent sociologist as a keynote speaker among us. So without any further delay, may I invite Professor Parvez Ahmed Abbasi sir to deliver his talk on transformation in the global societal norms. Welcome, sir. Thank you, Dr. Sushila. Actually, I was given very short notice to prepare the topic, but I tried. Just I want to present in a nutshell what I feel about the coronavirus. Okay, so there is no doubt that the coronavirus going to be a game changer, at least in doubts, and then redefining the mighty superpowers, the fragile world's order, and myth of science and technology, the helplessness of medical science, the high-handedness of a democratic authority in putting people in lockdown and economy in lockout for the indefinite period, the efficacy of welfare state in disaster management, and a lot more, including the wisdom of the balcony class. The rest of the 21st century will keep on struggling to find out the truth, likely to be distorted by the self-fulfilling debates in public domain. The popularity the coronavirus has got, the extra power it has added to the government, the fund it has raised, the communal divide it has created, the new international order, and that would come and so on, would not allow the COVID-19 die down in near future. Okay. Ultimately, it legitimizes
the domination of nations in the name of health. It wants all government and non-government employees to install certain apps so that they can be tracked out. Transformation of the global social norms is not new. Even if you take the scheme of Comte, it is from theology to metaphysics and then positivism. You can very well add post-positivism, phenomenology, etc. Historically, we have had scientific revolutions, political revolutions, and industrial revolutions. Now it is IT revolution. In between, we had green revolution, white revolution, etc. Today, revolution are evolutions. Otherwise, you can't think of globalization in terms of global village. How does sociology capture the perspective at backdrop of corona pandemic? Okay, sociology must wait and watch. Sociology, unlike reporting, is not for merely merely description of the events taking place around us. Of course, sociology has to put facts and figures into perspectives with sociological imagination. Moreover, it has to capture the interface between the structure and agency and how the structuration is taking place, or else it will be as good as the journalistic view. Sociology probably needs the litter wind to throw out its jargons created to meet the required academic score. I'm sorry, don't take things personally at the cost of science of society. It has been diluted to the extent of being reflexive for sociologists to be like Alice in Wonderland. The first lesson of sociology is, according to Berger, things are not as they appear. We need to go what is beyond visible with sociological imagination, as said by Mills. The crisis of sociology is no less than serious than the crisis the world is facing today, from runaway word to lockdown word. Runaway word concept is given by Giddens. Hello? Hello? Yeah. Yes, sir. It is connected. What is needed to underline here is the word norms. Ours is normative society with some sort of values. Again, it takes time for norms to be mores and to be invaluable in cultural texture and to be part of the larger social structure, as said by Professor Yogendra Singh, macro social structure. What is seen today is the random or bewildered responses of the government machinery at different levels. Nobody could imagine the nationwide lockdown all of a sudden to start from midnight with the instruction that be where you are. The rest is you. Sociologists must be prudent enough to have some sort of homework in understanding latent and manifest functions of lockdown. It is left to the imagination of fellow sociologists. Now takes note of how the migrant workers responded to the lockdown and subsequent response of the executive as well as the Supreme Court. If we
try to understand from the very perspective of the right to life and human rights, the class character was very clear when flights were sent to different countries to bring back Indians held up there. Therefore, the structural elements that compel us to respond in a particular state sponsored way are not norms but mandatory instructions to follow. Okay, right now the society is at the receiving end and can not have its normal functioning. It is the state, the most powerful institutions have suspended the normal social processes to take place. Sorry. What is needed to underline here is the immediate or contingent responses of the government are not the trends are likely to be norms in near future. Society is in suspended animation. These are the strategies of the disaster management. Moreover, such responses are not global but local. America's response to the COVID-19 is different from that of the India or China or Brazil. Even in India, every state has its distinct responses. Of course, the digital world gets connected from the essential communications. What is now normal is the discourse started on web portals, work from home, online teaching, etc. are in place. It seems to be a viable alternative, though it is not new. What appears to be affected is globalization. The analysis of risk society, as given by Beck, can be seen as a sociological response to the uncertain social consequences of economic globalization. I can suggest that the world is moving fast towards a masked society in which the creation of self, as stated by Mead, in society or the face value will be insignificant in public domain. There will be resurgence of nationalism and national interest. International relations will tend to strike a new balance. A lot depends on how the nations respond to post-COVID scenario. The UN may lose its importance. Economic hardship of the developing and underdeveloped societies may have to oblige the emerging conditions. We can talk on prospective word, but we have to wait to be sure of changes taking place at policy level and subsequently the practices. In the end, our society will be defined not only by what we create, but by what we refuse, we destroy, as said by Sohill. What will not change
seems to be more important than what is going to change. There will be revival of the spirit and practice of social Darwinism. The animal spirit required for the revival of world economy will keep the welfare scheme in cold storage. The achievement of millennium goals will be deferred. The existing world inequality, human trafficking, arms conflict, global warming, and so on will remain as they are. Of course, we are going to have a different set of behavioral patterns in this new normal emerging world, in which Talcott Parson will be remembered again for the pattern variables and functional imperatives, and Michael Foucault to explain what social change suggests. Sociologists will have tough time once this phase gets over. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your insightful lecture. And now I open this house for the question answer session. DC sir, please unmute all. पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन कर सकते हैं जिसको पूछना है. आपका माइक, पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन कर लेना. सर प्रोफेसर अब्बासी को आप कर दीजिए एक बारी. सर का म्यूट हो गया, उनको शायद पता ना हो. मैं अनम्यूट कर देता हूँ. कर दिया. ठीक है सर, अनम्यूट है. आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है, किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जो हमारे आज के विषय. हाँ, पूछ सकते हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, प्रश्न है. आप सबके माइक अनम्यूट किए हैं डीसी सर ने, आप उस पर क्लिक करके अनम्यूट कीजिए अपने को. अपना माइक ऑन कर लीजिए, सबके माइक ऑन है. सर मैं डॉक्टर सैदा शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या भविष्य दिखाई दे रहा है निकट समय में, कोरोना से हम लोग कैसे डील कर पाएंगे? हर दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं सर, तो कुछ प्रकाश डालिए कैसे इसको डील करें. हाँ, मैं इसको ये बताना चाहूंगा आपको कि कोरोना वायरस जो डिजीज है, जो है कोविड-19, उस डिजीज को तो मेडिकल साइंसेज ही उसको जो है पता कर सकती है, सोशल साइंस नहीं पता कर सकती. अगर आप दुर्खैमियन पर्सपेक्टिव में इसको समझना चाहते हैं तो मान लीजिए जैसे एड्स था, जो एड्स का जो है इलाज तो डॉक्टर खोजेगा, मेडिकल साइंस जो है, लेकिन एड्स जो वे ऑफ लाइफ को अफेक्ट करे जो है सोशियोलॉजिस्ट या स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी का जो है वो विषय हो जाता है. समझ रहे हैं? तो कोरोना वायरस जो हमारा जो वो है, हम तो मेडिकल साइंसेज में नहीं डालेंगे. हाउ इट इज सोशल फैक्ट, अगर दुर्खैमियन पर्सपेक्टिव में देखें, सोशल फैक्ट कैसे है, हाउ इट अफेक्ट्स द वेज ऑफ लाइफ, थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग. समझ रहे हैं? और ये जो है कोई इंडिविजुअल के अंदर जो वायरस है वो तो मेडिकल साइंस का है, लेकिन कैसे ये जो है बाहर से जो है आपको किस तरीके से प्रेशराइज करता है, जिससे कि आपका बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है. जैसे कि मास्क नहीं लगाएंगे जो है तो क्या होगा, जो है हम सोचते हैं बहुत ज्यादा, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो कुछ भी नहीं होगा जो है, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं इन्फेक्शन आ जाएगा, वहां तो इतने लोग मर गए, इसकी कोई दवा नहीं है. तो फिर वो आप मास्क लगाने के लिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं कि अगर नहीं लगाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी. आप आप उसको फील करते हैं, उसके परिणामों को, फिर आप उस तरीके से बिहेव करते हैं जो. तो ये जो बिहेवियर है, अगर दुर्खैमियन पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि एक्सटर्नल जो है ये व्यक्ति पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट दबाव डालता है. समझ रहे हैं कि ऐसा आप करेंगे नहीं तो आपकी लाइफ थ्रेट है जो है. तो ये कोरोना वायरस तो हम जो है मेडिकल साइंस का है, लेकिन इसका सोसाइटी पे जो इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे लाइफ पैटर्न को चेंज कर रहा है, उसकी हम जरूर जो है वो कर सकते हैं. ये प्रश्न आपका जो है मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है,
बढ़ता जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम। हेलो। हेलो। हाँ, क्या आपको मतलब सेटिस्फैक्शन हुआ जवाब से? हेलो। हेलो मैडम, जो आपने क्वेश्चन पूछा, आप सेटिस्फाइड हैं इससे जवाब से? जी सर। सर एक थैंक क्वेश्चन यू था सर, मेरा। थैंक यू सो मच। कौन सर? सर मीनाक्षी सबसे बोलिए, सबके माइक ऑन मत करें, एक एक माइक ऑन करें, है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, मैं पूछूं सर? सर एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ 1 से लेके 5 सीरियल नंबर तक किसी का कोई प्रश्न है? 1 से लेके 5 तक? दिस इज द बेटर वे। 5 से लेके 10 तक का कोई है? जी 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 मैम। प्लीज 5 के बाद जो 6 हो वो पहले बोल ले, 7, 8, 9, 10 इस बीच के जो भी है प्लीज क्वेश्चन पूछे अपना। सर गुड इवनिंग, मैं अंजू तेवतिया। सर कॉम्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो किस वे में देखेंगे? काम का तो जो अगर हम मानवता के धर्म वाली बात कर कॉम की लेते हैं, पॉजिटिविज्म की, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम इसको किस तरीके से लें? उस या परिप्रेक्ष्य आपका में इस पे? जी सर। उस परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये लाइफ थ्रेटिंग वो है, लोगों को जो है किसी भी उसके हो, जो रेस के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, तो जब ये ह्यूमैनिटी पे आया है जो है, समझ रहे हैं, तो वो सारे लोग जो है वो एक मानवतावादी अप्रोच से चलेंगे, जो यहाँ पे किसी का वो नहीं होगा जो, और थियोलॉजी मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, मानव नहीं होगी जो है। तो सर ये क्या प्रॉब्लम साइंस को उसका कल्याण करना, हाँ और जो धर्म का भी यही मोटिव है जी। तो, लेकिन वर्तमान थे मिर्जा सर ने भी ये बात बोली थी कि इस महामारी से एक तरीके का ब्रिज डेवलप हुआ है जिससे लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए सामने आए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि विज्ञान जो है, विज्ञान तो होता है ऑब्जेक्टिव, और विज्ञान में गुड और बैड नहीं होता, जो है ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसका है क्या उपयोग करते? जी जी उसमें भावनाएं नहीं होती विज्ञान में, जो जी 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 समझ रहे हैं वो, जी इसीलिए जी होता है में जो उसको क्या किया, साइंस सोशियोलॉजी को बनाने के लिए सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि सोशल फैक्ट व्यक्ति के अंदर नहीं होता, भावनाएं अंदर होती हैं। सोशल फैक्ट हाँ बिल्कुल कहाँ होता है? दबाव के जी जी बाहर होता है जो, इसलिए वो जी किसी भी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। तो एक उन्होंने कहा कि ये वस्तु की तरह है सोशल फैक्ट जो है, जिसपे भावनाएं नहीं पड़ती, तो ये साइंटिफिक जो है सब्जेक्ट के लिए फिट है, इसका सब्जेक्ट मैटर अगर ऐसे देखें तो। साइंस तो ऐसी भावना की बात नहीं करता लेकिन साइंस का उपयोग जो है वो मानवता के लिए होना चाहिए जी वही। तो दोनों अलग हैं, लेकिन साइंस का गुड भी उपयोग है और बैड उपयोग भी है। बैड ये है कि कहीं पे आप जो है एटम बम गिरा दीजिए तो पूरा सोसाइटी साफ हो जाएगी, नेशन के नेशन साफ हो जाएंगे। कोरोना वायरस अगर लैब में बना है, अगर आप फैला दीजिए तो पूरा वो, अभी पता नहीं फैक्ट क्या आएगा, वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो वैसे ही डाउट में लोग घूम रहे हैं जो कि है क्या जो फैक्ट जो। तो ज्ञान का प्रयोग मानवता के लिए होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग हैं, जो मानवता अलग है जो है, विज्ञान अलग है। मानवता का संबंध होता है कि मतलब मानव, लेकिन है कि इसके लिए अल्टीमेटली साइंस किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, फॉर गुड सेक। तो उपयोग उसका होना चाहिए अच्छी उसमें, लेकिन साइंस अपने आप में जो है वो भावनाओं से या मानवता से या उससे मतलब विनाश से जो है मुक्त है, जो उसमें इसका कोई स्कोप नहीं है जो विज्ञान में। इसका उपयोग होना चाहिए, ये जरूर है कि अच्छी चीज के लिए जो। थैंक यू सर। 10 to 20 में कोई प्रश्न पूछना चाहता है? सीरियल नंबर 10 to 20। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे उसके जन्म से लेके मृत्यु तक संस्कार बने हैं। जन्मदिन होता है, मुंडन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विवाह समारोह होता है, मृत्यु संस्कार होते हैं।
और सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, और सामाजिक प्राणी होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और जो ये कोरोना आया है, इसकी वजह से इसने सोशल डिस्टेंसिंग बना दी है। अब क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये सामाजिक जो कार्यक्रम, सरोकार और जो सांस्कृतिक उत्सव में लोग आया जाया करते थे, पोस्ट कोविड के बाद क्या बदलाव हो सकता है, और हम लोग एक्सपेक्ट करें या फिर भूल जाएं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सोशल गैदरिंग को भूल जाएं? इस पे सर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, इस पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है नॉर्मल कोर्स नहीं है। ये जो कोर्स अभी है, जो कोविड-19 का जो है, वो कैसा है, एबनॉर्मल कोर्स, और जो है सोसाइटी क्राइसिस में है, जो इस टाइम जो है संकट में है। अगर आप डर्कहाइम को याद करें तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है दिया था, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता, चाहे वो रिचुअल्स हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एक दूसरे से जो आप कहते हैं ना इंटरैक्शन जो है, और जो रेसिप्रोकल जो रिलेशंस होते हैं, जो आपने तमाम रिचुअल्स और जन्म से मरण तक का बताया जो है। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, अभी सोसाइटी नॉर्मल में नहीं है। जब तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती जो है, अभी आप क्या सोचते हैं कि कोरोना वायरस फॉर एवर रहेगा? ऐसा तो है नहीं जो है। हमें विज्ञान पे इतना विश्वास है। हाँ, 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा रह सकता, तब तक हमें जो है पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ नहीं, मैंने कहा ना कि अब जो है दरेदा और ये सब नहीं यूजफुल होंगे, ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि आपको मर्टन और जो है आपको जो है पार्सन्स की तरफ जाना पड़ेगा जो है एनालिसिस करने के लिए, जो समझ रहे हैं जो है। तो ये क्राइसिस की स्टेज है, इसको आप नहीं कह सकते। जो ये अभी जो है चेंज आप नहीं कहेंगे, फॉर टाइम बीइंग जो है बचाव के लिए जो है इस तरीके। और फिर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ? हमारे इंटरकोर्स जो है, हमारे जो है सोशल इंटरकोर्स जो है वो हो रहे हैं, जो इंटरेक्शन जो है हो रहे हैं, जो एक दूसरे से जो है वो भले वर्चुअल हो रहे हैं, अगर रियल में नहीं हो रहे हैं तो वर्चुअल तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन सोशल इंटरकोर्स खत्म नहीं हुआ है। हाँ सर, वर्चुअल में सर हमारे जैसे कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर स्पर्श नहीं कर रहे हैं और न चख पा रहे हैं। इस ऐसी जो फीलिंग्स हैं, तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां तो सेटिस्फाई हो नहीं रही हैं, तो हम कैसे मान लें सर कि हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में हम वो सारे मतलब हमको फील होगा जो पहले सामाजिकता में रहता था, सोशल डिस्टेंसिंग बनने से ये सब तो कम हो जाएंगी। और अगर 2 साल 3 साल रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों में ऐसी डिफॉर्मिटीज आ जाएं कि लोग बोलना छोड़ दें, सोसाइटी में उनके बिहेवियर इम्पैक्ट हो जाए, फर्क हो जाए। देखिए, जो बरसों हजारों साल का बिहेवियर है वो 2-3 साल में चेंज नहीं होगा। इतना जरूर है कि जैसे गिडेंस ने कहा था ना, रन अवे सोसाइटी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या था, कोई चीज टाइम स्पेस कुछ नहीं महत्वपूर्ण था जो है, समझ रहे हैं ना। तो टाइम फॉरेन कनेक्टिविटी इतनी थी, विदाउट नो टाइम आप कनेक्ट हो जाते थे। स्पेस भी नहीं महत्वपूर्ण है, चाहे आप अमेरिका में हो या किसी विलेज रिमोट में बैठे हुए हो, यू आर कनेक्टेड जो है विद द वर्ल्ड जो है। तो ये चीजें थी, लेकिन उससे अब लॉकडाउन की ये स्टेज है। आप कह रहे हैं कि जो इंद्रियां जो है नहीं होंगी, ऐसे वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो है क्या है, सिर्फ जो है क्या ऑर्गेनिक डिस्टेंस जरूर है, जो ऑर्गेनिक डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस जिसे आप कह सकते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं है। तो ये तो क्राइसिस का समय है, जो है संकट की घड़ी है, जो है इस समय तो ये चीज करनी पड़ेगी, इतना जो है एडजस्टमेंट। और एक फंक्शनल अल्टरनेटिव्स भी होते हैं मर्टन के हिसाब से जो है। हेलो जी सर, जी सर। तो उसको तो करना पड़ेगा, जो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स हैं कि ठीक है, रिचुअल अगर लास्ट रिचुअल है तो लोग तमाम नहीं जाएंगे, 20 लोग जाएंगे। जो अगर मैरिज है तो लोग जो है तमाम नहीं जाएंगे, बल्कि 50 लोग जाएंगे, जो है समझ रहे हैं। लेकिन होगा गार्लैंड जो हाथ से नहीं तो ठीक है, बाम्बू स्टिक से डाले जाएंगे, जो समझ रहे हैं, क्रियाएं होंगी, उसके साथ जो है चेंज हो जाएंगे जो है। और जो इंद्रियों वाली चीज है कि एक जो फीलिंग है, तो मास्क से भी अगर आप लगाए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को तो कोई पता ही नहीं कर पाएगा। तो क्राइसिस की स्थिति है जो है, उसको तो हमें जान है तो सभी समाज भी है,
समाज का यूनिट व्यक्ति है जो है, व्यक्ति अगर खत्म हो जाएगा तो समाज का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले तो बचाना है सबको जो, तभी सोसाइटी के नॉर्मल स्टेज में, ये एबनॉर्मल स्टेज है सोसाइटी की अभी जो क्राइसिस में। हेलो जी सर, जी सेटिस्फाइड है? हाँ ठीक जी है सर। थैंक यू। नहीं आप और पूछिए, अगर कोई क्लियरिटी नहीं हो तो बताइए। मैं जो बस सर यही क्वेरिसिटी यही थी कि सर इन एबनॉर्मल में हम लोग को कैसे रहना है, बस यही थी, मगर आपने बता दिया सर। थैंक यू सर। वेलकम। 10 to 20 में और कोई? 20 ECT सीरियल नंबर? हेलो, मैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी हूँ, 30 to गवर्नमेंट 40 में गर्ल्स। कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न, मैडम क्या मैं प्रश्न पूछूं? 29 सर प्लीज। मैम मेरा 30। एक मिनट, 29 पहले हो जाए फिर 30 हो जाएगा। जी 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 जी। परवेज सर, मेरा एक सवाल था अबाउट द सोशल फैब्रिक ऑफ, जी, सोशल फैब्रिक ऑफ लो इनकम कंट्री। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ रिपीट करिए। जी, मैं कर रहा हूँ, कुछ पीछे से कुछ लोगों की आवाज है शायद, इस वजह से मैं इतना ऑडिबल जो नहीं हूँ। प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न उनके पूछें। अलावा बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज और लोग म्यूट कर लें। अब पूछिए प्रशांत जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था जी कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, थोड़े से गरीब देश हैं, जी उनका जो सोशल फैब्रिक है, इकोनॉमिक फैब्रिक है, वो कंपैरेटिवली फ्रेजाइल है अमीर देशों के मुकाबले। यस यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, या आप उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहें, जी। भले फ्रेज का फर्क हो, मतलब वही निकल रहा है। तो मैं 2 तो साल 3 साल वो हमें पता नहीं है कि हेलो, जी मैं तो जी ऑर्गेनिक डिस्टेंस कहता हूँ, ऑर्गेनिक डिस्टेंस, दुर्खैमियन जी टर्मिनोलॉजी में ऑर्गेनिक डिस्टेंस, हाँ जी जी। तो ये भी थोड़ा सा अफोर्ड करना, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है जी इन गरीब देशों का, जी तो जरूरी है, वो मैं कह रहा हूँ कि वो जरूरी है, वो हमें उसको काउंटर करना है, क्योंकि एक ऐसी डिजीज है और बिल्कुल नया फिनोमेनन है दुनिया में। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फ्रिजिलिटी की वजह से इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक तो जो होगा वो होगा, लेकिन एज अ सोसाइटी जो गरीब मुल्क हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उन पर ज्यादा होगा अमीर देशों की अपेक्षा? अच्छा, ये लॉकडाउन के कितने टाइम हो गए? 40 दिन? 45 दिन हो गए हैं प्रॉब्ली। 45 दिन में आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखी क्या है? मैं तो 45 दिन में कहीं 2 बार नीचे गया हूँ अपने इस सोसाइटी के, ओनली 2 टाइम्स। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई जरूरी थोड़ा पिज्जा और बर्गर खाना, दाल रोटी से काम चल रहा है या नहीं? आप सत्य नहीं सर, बताइए। मेरा जी जी मेरा चल रहा है, मैं उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं अपने को। मेरा एक केवल प्रश्न ये था कि जो देश हैं जहां पे जो ज्यादा गरीब हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, वो बिल्कुल ज्यादा प्रभावित होंगे मैं अमीर समझ, देशों के। क्या आपको लगता है कि दोनों जगह इम्पैक्ट एक सा होगा? मैं आपको बता दूं क्लियर कट जो है, आप भारत की सिचुएशन देख लीजिए, अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया। हेलो जी सर, जी सर, मैं जी सर जी। रूरल इंडिया में क्या है, लोग आज जो है बड़े आराम से हैं, जो है आपको मालूम होना चाहिए। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि सारे अर्बन से जो है रूरल की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और उनको रोटी दाल तो मिल जाएगी, कम से कम मिट्टी तो नहीं खाना पड़ेगा, जो अर्बन में 1-2 चीजें आई हैं अभी सामने जो है। तो इसी तरीके से मेरा कहना है, जो लो इकोनॉमिक कंट्री हैं उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। और हमारे यहाँ भी उस हिसाब से, जैसे हमारा मतलब ये 91 के बाद जो है लिबरलाइजेशन का दौर और इकोनॉमी जो चली जो है 5वां, उस पर पहुंचने चाहिए। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है अभी मेडिकल फैसिलिटी में, तो लो इनकम के ग्रुप की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी वो और तो होगी जो, लेकिन जो लाइफ थ्रेट का है वो मुझे नहीं लगता जो है कि इतना ज्यादा उनपे प्रकोप होगा जो कोरोना वायरस का जो है।
जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अफ्रीकन कंट्रीज से जो है बहुत कम केसेज हैं, हालांकि वहाँ वेंटिलेटर भी नहीं है, इतने लो इनकम ग्रुप के लोग हैं कि बहुत से कंट्री हैं यहाँ पे एक भी वेंटिलेटर नहीं है जो, लेकिन उनका जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा जो है। इसी दौर में उनको कौन सा फायदा हुआ था जो, आप बताइए इसी समय उनको कौन सा फायदा हुआ था ग्लोबलाइजेशन का जो। अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, सोमालिया को देख लीजिए जो, और आगे बढ़िए जो देखिए जो, कोई ज्यादा विशेष जो नहीं। हाँ, डिजीज का इन्फेक्शन होगा तो सर्टेनली जो है हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका जो है देख रहा है जो कि वहाँ पे वेंटिलेटर और ये सब पहुंचाए जाए जो है इन्फेक्शन देखते हुए। बाकी ज्यादा जो है इंडिया पे अगर आप देखें तो क्या हुआ, रूरल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका जो, वो तो समाता चला जा रहा है, इतना विशाल है जो है। आप देखिए कोई प्रॉब्लम रूरल सोसाइटी में नहीं है। मुझे यहाँ घर से आया जो है कि लेटर जो है कि यहाँ चले आओ दाल रोटी तो मिल जाएगी, क्यों वहां पड़े हुए हो। ये सिचुएशन है जो, तो इस एंगल से देखिए कि जो उनके रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा नहीं है जो, उसमें वो जो है खुश हैं जो है, लेकिन डेवलपमेंट तो होना चाहिए, क्यों न मिले जो है उनको भी जो है। लेकिन इस डेवलपमेंट से क्या फायदा जो मनुष्यों के लिए ही जो है दुश्मन बन जाए जो है। ऐसे डेवलपमेंट से तो अच्छा हम जो है पहले जो थे जो है 80 साल पहले जो है रूरल लाइफ में जो रहते थे जो। हेलो जी सर, जी थैंक यू सर। हेलो, ग्लोबलाइजेशन तो वैसे भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री सोसाइटी है उनसे ड्रेन आउट ही कर रहा है जो। जी जी, इससे तो ये भी एक सौगात है, कोरोना भी एक सौगात है ग्लोबलाइजेशन की, जो ड्रेन करने के बाद दी गई है उनको। अब ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही तो पूरे विश्व में फैल गया। 1720 वाली जो महामारी प्लेग की थी इतनी नहीं वाइडली फैली थी जितना ये फैल गया जो, क्योंकि अब जो है कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है जो कि आप रोक ही नहीं सकते उसको जो। आप देखिए इंडिया में कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन क्या हुआ, बाहर से आ गया जो, बड़े जल्दी आ गया जो। तो सौगात तो लेनी पड़ेगी, जब हम अच्छी चीजें ले रहे थे तो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा जो। ग्लोबलाइजेशन के फायदे ले रहे थे तो इसको भी भोगना पड़ेगा जो। कुछ लोग कहते हैं इसका ग्लोबलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, हमारे समाजशास्त्री, मैं कहता हूँ क्यों नहीं है। कोरोना वायरस का ग्लोबलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, मैं कहता हूँ क्यों नहीं है साहब। वो मानने को तैयार नहीं है कुछ हमारे फ्रेंड्स जो। अभी सीरियल नंबर 30 शायद कुछ प्रश्न पूछना चाह रही थी प्रतिभा मैडम। सीरियल नंबर 30 प्रतिभा जी, माइक। सर आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी सर। सर से एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जैसे अभी रिचुअल्स कुछ कम हुए हैं, पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि रिचुअल्स जो थोड़े से कम हुए हैं या लिमिटेड लोग, उन्होंने कहा है कि लिमिटेड लोगों के साथ में शादी विवाह के या डेथ सेरेमनी और जो भी जिस तरह की सेरेमनी जो अपनी जो थी तो उनमें लोगों को कम किया है। पहले क्या था सर कि बहुत सारे लोग, तो वो चीज क्या अपन थोड़ा सा इस चीज को कुछ लिमिटेड और कंटिन्यू कर सकते हैं समाज हित में ही सर? रिचुअल्स तो होंगे, सुन रहे हैं ना आप जो? यस सर, हाँ सर। जी सर, रिचुअल्स होंगे, लेकिन ये जो मतलब एक क्राइसिस की स्टेज है तो बहुत से लोगों को तो लास्ट रिचुअल्स भी नहीं हो पाई, आपको मालूम होना चाहिए। जी सर। में इटली में क्या हुआ जो है, बिल्कुल जो है ये ग्रेवयार्ड, कॉमन ग्रेवयार्ड बनाया गया जो है, जिसमें कई लोगों को जो है लाइन से जो है दफन कर दिया गया। और दूसरी चीज, ये बीमारी ऐसी है कि मतलब आप इसको टच भी नहीं कर सकते। इटली का एक केस मैं आपको बताऊं कि एक महिला जो है वो डेड बेड पे थी उस टाइम जो, और उसका जो है नेसेंट जो चाइल्ड था जो कह रही थी कि लास्ट टाइम जो है मेरे बच्चे को मेरे लगा तो जो, ये स्थिति थी जो है।
अब उसको जो है, बच्चे को जो है उसमें पैक किया गया जो है, और उसके बाद जो है लास्ट टाइम में उसको जो है दिया गया। तो अब तो ये बताइए जो है कुछ ये सर जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ बहुत ज्यादा आडंबर होता था पहले, उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है क्या कोविड-19 के बाद, अगर अपन बात करें? क्योंकि समाज में बदलाव तो होना ही चाहिए, और समाज ऐसी स्थिति से निकल रहा है क्योंकि पहले पिछले 30-40 सालों में जो समाज में जिस तरीके से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ या ग्लोबलाइजेशन जो आप कहते हैं सर, मैं उसको एग्री करती हूँ कि वो तो बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबलाइजेशन के कारण से आदान प्रदान सभी चीजों का हुआ, तो इसमें अपन इस स्थिति को देखकर इसको एक कंट्रोल वे में अब नए सिरे से चालू कर सकते हैं क्या? ऐसा है मैडम, सुनिए जो है, जो जो रिचुअल है, हेलो जी सर। रिचुअल इज जो है फॉलोड बाय सोशल स्टेटस। रिचुअल्स तो सभी करेंगे, हर धर्म के रिचुअल्स हैं वो सबको करना है, लेकिन उसका समाज में जो स्टेटस है जो है उसको आप कहाँ से ले जाइएगा, क्योंकि ये तो स्टेटस जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रेटिफिकेशन जो है यूनिवर्सल फिनोमेनन। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है यहाँ क्लासलेस सोसाइटी जिसकी बात करते हैं, वहां पे भी जो है क्या है, जो है क्लास है, जो है वहां पे भी जो है स्टेटस मीनिंगफुल होता है। जो तो उस स्टेटस को शो करने के लिए सोसाइटी में जो है तो रिचुअल्स को जो है, जिसे आप आडंबर कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ कि स्टेटस सोशल जो उससे जोड़ना पड़ता है लोगों को। अब जजमानी सिस्टम था पहले, आपको मालूम होगा, जी सर, जी सर। सिस्टम में लोग कहते थे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो जजमान है वो जो सर्विंग कास्ट को जो है क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते थे, जो पैट्रॉन जो है क्लाइंट का जो। लेकिन ऐसा भी है कि जो पैट्रॉन था वो जो पेमेंट करता था जो है फसलों के टाइम पे, जो है क्रॉप के टाइम पे, वो ज्यादा देने की कोशिश करता था, क्योंकि वो पब्लिक में आता था डोमेन में कि उसने कितना दिया। अगर वो कम देता तो उसका स्टेटस जो है कम हो जाता था जो, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है उस तरीके से मैरिजेज में ऑर्नामेंट्स जो अच्छे से अच्छा देना चाहता था सर्विंग का कास्ट के लोगों को जो, तो क्योंकि स्टेटस से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और इस आप जो है नहीं हटा सकते, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो जो है, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, या जो है चाइना की सोसाइटी हो जो कहते हैं कि कम्युनिस्ट हैं जो, वहां पे भी जो किसी न किसी रूप में जो है, हाँ उसके आधार जो है बदल सकते हैं, जो है कहीं कास्ट हो सकती है, कहीं क्लास हो सकती है, कहीं पे एजुकेशन हो सकती है, कहीं पे प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अब उसका तो शो होगा ही सोसाइटी में, अदरवाइज कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो, क्योंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी के और इसको जो हम नहीं हटा सकती, कभी सोसाइटी हो ही नहीं सकती। सर दूसरा, जैसे इसमें इस पीरियड में सबसे ज्यादा समाज पर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि लोगों को सर ऐसे घरों में रहने की आदत नहीं थी, और अब लोग एकत्रित होकर घर में रह रहे हैं, तो एक थोड़ा सा पारिवारिक संरचना थी, वो उसमें भी बदलाव आया है। तो इस पारिवारिक 40 दिन में मैं 2 बार अपने सोसाइटी में नीचे गया हूँ, बैंक तक जो। जी सर, वही सर मैं कह रही हूँ कि तो इस चीज में अच्छा हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं इस बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो सर इसको अपन समाजशास्त्री, मतलब आप जैसे समाजशास्त्री होने के नाते उस चीज को अपन कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो लोग अभी अच्छा बता रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग अपनी अपनी तरफ भागने लगेंगे, उस चीज को कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है? जो फैमिली गैदरिंग है सर, पारिवारिक संरचना, व्यक्तिवादिता है सर, इन सब चीजों को थोड़ा सा कम। अभी तो थ्रेट है, इसके वजह से लोग हैं नेचुरली जो है, और जब आदमी जो है उस थ्रेट से बाहर आएगा तो उसको कंट्रोल करना तो मुश्किल है जो है, क्योंकि ये तो बरसों पुरानी चीजें थी, क्योंकि वो क्या है, सोशल है, मनुष्य जो है क्या है, सोशल है जो है, तो उसका जो इंटरेक्शन और जो ग्रीटिंग और ये सब है तो मतलब कोशिश करेगा वो, लेकिन एट द सेम टाइम से तब तक 40 दिन में कोरोना के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको सब लोग जान गए हैं अब जो, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन अगर जो है हटेगा भी तो लोग जो है देखिए जो है उसको जरूर पालन करेंगे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, उसने पूरा वे बदल दिया है, रिंग में खड़े होकर मेडिसिन लेना पड़ता है, आपसे ज्यादा जो है वो दुकानदार ज्यादा सतर्क रहता है, मैंने देखा सूरत में जो है यहाँ पे
कि दुकानदार ज्यादा सतर्क रहता है, जो वो खुद कहेगा, जितना आपको डर है उतना उसको भी। तो ये एक तरीके से जो अब सोसाइटी के काम तो चलेंगे, जो वो नहीं। अभी आपने देखा इस लॉकडाउन में कितनी मैरिजेज हुई जो। जी सर, हाँ मैरिजेस हुई, लेकिन सर वो बहुत 2-5 लोगों के साथ में या 10 लोगों के परमिशन के उन्होंने 50 कर दिया है, 50। जी जी सर, गवर्नमेंट ने 50 कर दिया। अच्छा हाँ सर, तो अभी हो गया होगा सर, जहाँ तो रेड एरिया था वहाँ तो बहुत लिमिटेड। और ये जो डिस्टेंसिंग ऑर्गेनिक है जो है, ये तो मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि तो लाइफ का प्रश्न है ये। और जब हम नहीं रहेंगे तो सोसाइटी नहीं रहेगी ना, सोसाइटी का प्रश्न है, अपना नहीं। जी सर, इस सोसाइटी का क्वेश्चन है जो, उसके जी सर। एग्जिस्टेंस का सवाल है जो, नॉट लाइफ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 30 to 40 के बीच में कोई प्रश्न पूछ रहा है? सीरियल नंबर मैडम 30 से मैं 40। पूछना चाहता हूँ मैम, 39 36 मेरा नंबर है। हेलो जी जी सर, कंटिन्यू। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस महामारी के कारण समाज में असमानता विषमता बढ़ेगी। क्या इस असमानता विषमता के बढ़ने से दुर्व्यवहार में भी वृद्धि होगी? असमानता समाज में इसके वजह से बढ़ी है। हेलो हेलो, क्या सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इनइक्वालिटी बढ़ेगी क्या इससे? अब आइए आप रिपीट करिए, उस वक्त कट गया था। जी जी, अगर ऐसा माना जा रहा है कि इस महामारी के कारण समाज में इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे दुर्व्यवहार में वृद्धि होगी। हाँ, उसमें इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी जी, अनएम्प्लॉयमेंट। जी, तो क्या इससे दुर्व्यवहार बढ़ेगा लोगों का, जो कुरीतियां हैं, चोरी बदमाशी, ये सब बढ़ेगी? और अगर बढ़ेगी तो हमें इससे समाधान कैसे करेंगे इसका? मिडिल क्लास जो है वो क्या हो जाएगा, जो है वो ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी जो है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि लॉकडाउन कर देना आसान होता है, लेकिन ओपन करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, इससे भी ज्यादा। क्योंकि जो भी फैक्ट्री जहाँ पे है, जिस हालत में है, वो वहीं पे रोक दी गई थी, बंद कर दी गई थी। अब उसको चलाने के लिए जो है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके सपोर्टिंग जो है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर वर्किंग जो है। कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए फुल फ्लेज में उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री बहुत सी होती हैं, मानते हैं इस चीज को? जी 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 जी। तो अब उन सभी को एक साथ जो है फंक्शनिंग में लाना जो है वो बहुत मुश्किल है। रोक तो देते हैं, जो रोक दिए जो उसको लाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, जो अगर बहुत किया जाए। आप इसको देखिए जो है। दूसरी चीज, जो स्मॉल स्केल की सपोर्टिंग इंडस्ट्री थी, उनके पास बिल्कुल भी इंडस्ट्री अगर कहते हैं एक बार बंद हो जाए, और फैक्ट्री को चलाने के लिए जो है स्मॉल से स्मॉल इंडस्ट्री को जो है कम से कम बताते हैं 60-70 लाख रुपए चाहिए जो है उसको चालू करने में जो। तो अब उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे चलाएंगे जो है। जो थे 40 दिन में खत्म हो गए लोगों के जो है जी। तो एक प्रॉब्लम है। तो अब इसका यही है कि अब गवर्नमेंट जो है उनको जब तक नहीं देगी जो मदद जो है, तब तक बहुत हमें मुश्किल लगता है। उनको देना ही पड़ेगा जो, अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर सकती जो है। तो गवर्नमेंट के हाथ में इस वक्त जो है बहुत कुछ है, और उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है उस पर सारी चीजें डिपेंड करता है। नहीं तो ग्रेजुअली चलने में बहुत टाइम लगेगा जो है, एक चीज जो है। दूसरी चीज जो है, जो लेबर माइग्रेंट जो है, जो बैक टू होम गए हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी से। हेलो हेलो जी सर सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है आपकी? जो गए हुए हैं वो आने वाले नहीं है जल्दी। अगर उनको जल्दी आना था तो फिर अभी भेजने का प्रश्न नहीं। ये मेरे समझ में नहीं आती चीजें जो है कि कहते हैं लॉकडाउन खत्म होगा, इंडस्ट्री चालू करेंगे, तो लेबर्स को क्यों भेजा जा रहा है? समझ रहे हैं? इसके मतलब अगर वो गए जो है तो फिर वो तो आ नहीं पाएंगे। मानते हैं इस चीज को आप यार? नहीं, आने में टाइम लगेगा सर, मानते हैं सर ये तो वो आ नहीं पाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इंडस्ट्री जो है अब चलेगी कैसे जब लेबर ही नहीं रहेंगे? सभी लोग चले गए, आएंगे नहीं। गवर्नमेंट जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, कल कहा कोई लेबर नहीं जाएगा।
आपको मालूम होना चाहिए। आज कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि नहीं सभी लेबर को भेजना। तो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना कंफ्यूज्ड है जो है, उसके पास मुझे पॉलिसी नहीं दिखाई देती। कल डिसीजन कल तक ये था कि कैंसिल की जाती है सारी ट्रेन, कोई लेबर नहीं जाएगा, ये हमारी रीढ़ है, हमारे जो है क्या इंडस्ट्री की रीढ़ है, हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा। फिर भाई डिस्कशन चलेगा, कोई कहा बॉन्डेड लेबर है क्या है क्या है। आज कर्नाटका गवर्नमेंट का ये आया कि नहीं हम लेबर को भेज रहे हैं जी। इसके मतलब प्रोडक्शन होना नहीं है अभी जो है, जो दिखाई दे रहा है, इंडिकेशन मिल रहे हैं जो सोसाइटी में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा जो है, इससे तो मतलब इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना जो जी। ये चीजें जो है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लोगों को। अपॉर्चुनिटी ज्यादा सिग्निफिकेंट है स्ट्रेटिफिकेशन में। किसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी हम कम कर दे रहे हैं तो फिर जो है क्या होगा जो है, वो खाई बढ़ती जाएगी। वो मिडिल क्लास का मैंने बताया ना कि वो बहुत ज्यादा जो है उसमें है इस वक्त जो ट्रबल में है, तो ये बढ़ेगी इनइक्वालिटी जो है। और साथ में लेबर क्लास भी जो है, क्योंकि उसके पास तो अब कुछ है ही नहीं है जो, वो पैदल तक चल दिए हैं जो है, ये हालत है जो कंट्री की जो है। वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए जो है। कितने लोग मर गए जो अभी देखिए जो ट्रेन पे जो वहाँ जो है सुबह हुआ हो गया 16 लोगों का जो है। तो ये सब क्या छटपटाहट दिखाई दे रही है लोगों में। और 40 दिन का जो है एक्सपीरियंस उनके पास है जो है। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो नहीं दिखाई दिया कुछ जो है, लेकिन वो तो वही जानते होंगे जो वो छटपटाहट और वो एक्सपीरियंस जो है, वो किसी भी तरीके से अपना दाल रोटी और चटनी खाने के लिए जो है गांव जाना प्रिफर कर रहे हैं बनस्पत जो है उनके उस सिटी में रहने से। वैसे भी गांव की क्षमता बहुत ज्यादा है, वो बहुत किसी को भूखा नहीं रखता जो है, वर्षों से चला आया है। जी सर। तो इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी जो। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। 40 से 50 में कोई प्रश्न? 40 से 50 सीरियल नंबर। चालीस से 50 में कोई है? नहीं है, कोई नहीं है आगे चलिए। हाँ मीनाक्षी, मेरा क्वेश्चन है सर से। जी 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 हाँ सुशीला। सर प्रोफेसर अब्बासी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम लोग जैसे सोशल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को मर्टन और पार्सन्स की तरफ रुख करना पड़ेगा कोविड-19 को, यदि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें जज करना है। मतलब तो कि इस समय जब जी मेरा मतलब है कि ये जो हम जो पोस्ट मॉडर्निटी वाली बात करते थे उसे थोड़ा बैठ जाना पड़ेगा। ये है जैसे अभी पोस्ट मॉडर्निटी में क्या था, दरेदा फूको ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण थे जो है। हाँ? जी जी ये मेरा मतलब जी था। जी जी लेकिन जी जी नहीं सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जिस तरह से कोविड-19 के दौरान जो चेंजेस सोशल स्ट्रक्चर में आ रहे हैं और इस स्थिति के बाद जो है सोशल स्ट्रक्चर पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव सोशल स्ट्रक्चर में आएंगे और कैसे उन बदलावों के साथ सामंजस्य करते हुए हम लोग जो है इस सिचुएशन को डील कर पाएंगे ताकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रह सके। तो सर किस तरह से? एक होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज इन स्ट्रक्चर। हेलो, तो यस सर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जो है। ये तो मतलब स्ट्रक्चरल चेंज तो बहुत बड़ी चीज है जो है। ये सब टेम्परेरी फेजेज हैं। स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर का नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर में चेंज ये हो रहा है कि जैसे हमारा इंटरेक्शन का वे है वो चेंज हो गया जो है। अब हम जो है आपसे जो है वर्चुअली जो है वेबिनार कर रहे हैं सेमिनार की जगह पे जो है, और जो है लोगों से जो है दूर रह के बात करेंगे जो है, 2 फीट की दूरी पे बात करेंगे, मास्क लगा के बात करेंगे जो है। तो ये पैटर्न में चेंज होगा, स्ट्रक्चर में नहीं चेंज होने वाला। स्ट्रक्चर का नहीं चेंज होगा, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर चेंजेज होंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, चेंज रहेगा जी। हमेशा चेंज जो है स्ट्रक्चर का तो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था जब आए तब होता है, रिवोल्यूशन हो या
या कोई जो है जी जी इवोल्यूशन हो कि वन फेज से दूसरे फेज में आए जो है, तो ये ओके नहीं सर। होगा, नहीं चेंज हो सकता। सोशल स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, उसके अल्टरनेटिव्स फंक्शनल हो सकते हैं कि अब जो है क्या है, नेट से हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले जो वॉइस से करते थे जो है, ये होगा, अल्टरनेटिव्स जी होंगे जो, लेकिन स्ट्रक्चर तो रहेगा वैसे ही। स्ट्रक्चर के अंदर जो है चेंजेज होंगे जो है, जी स्ट्रक्चर जी का नहीं होगा। और वो भी जो होंगे तो वो उसका फंक्शनल वो होगा जो हमारे पास जो अल्टरनेटिव होंगे फंक्शनल उसके लिए। चेंजेस। जी जी हाँ, थैंक यू सर। वो तो बहुत बड़ी चीज है स्ट्रक्चर का चेंज। जी अब ये माइक्रो और माइक्रो दोनों स्ट्रक्चर में आएंगे दोनों। मीनाक्षी आगे बोलिए। 50 to 60 में कोई है तो कोई प्रश्न? मेरा 50 एक से सवाल 60? है, मेरा एक सवाल है मैडम, सर से मेरा एक सवाल है। जी सर, जैसे हम लोगों ने समाचारों में देखा, जी अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है चाइना को इस महामारी के लिए दोषी कह रहा है। तो क्या आगे ये दोषारोपण मतलब ब्लेम गेम चलेगा और इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसमें पहली चीज तो ये है, संबंध में होगा कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं जो। जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अपने इंटरेस्ट हैं, उनको इलेक्शन जीतना है, समझ रहे हैं आप जो है। अच्छा, उनके पास क्या इस कोविड-19 का जो है इतना इम्पैक्ट पड़ा उस सोसाइटी में, डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गई है, और अमेरिका में सब चीज बर्दाश्त की जाती है, डेथ को नहीं बर्दाश्त किया जाता। ये अमेरिकन जो है वैल्यू सिस्टम है जो। अच्छा, उससे जो है अब उनका काफी जो है इलेक्शन आने वाले हैं, तो कुछ न कुछ एक तो ये करना पड़ेगा कि मतलब कहीं तो उनको बचाव के लिए रास्ता, और चाइना से अच्छा फील्ड उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्टर स्वामीनाथन इंडियन है जो है, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो वो कह रही थी कि चाइना तो बहुत कोऑपरेट किया है, और डेटा जो है, सारे डेटा जो है वो टाइम टू टाइम पे रिलीज करता रहा, और हम लोग जाके उसका ऑब्जर्वेशन करते रहे, कोई चीज छिपाई नहीं है। अब फैक्ट क्या है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन इससे जरूर है कि जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है जरूर इमर्ज हो रहा है। दूसरी चीज, जो सुपर पावर था जो जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, वो बिना किसी लड़ाई के सुपर पावर को चाइना ने जीत लिया है इस कोविड-19 से जो। और आज चाइना जो है, ये सारे थ्रेट्स जो लोग दे रहे हैं इसलिए क्योंकि वो सुपर पावर बन चुका है जो, आपको मैं बताऊं जो। तो ये तो कुछ न कुछ तो होगा जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा जो है कि हिरोशिमा नागासाकी की तरह जो है उस पर बम, एटम बम गिरा दिए जाए। आज के समय में ये भी संभव नहीं है। ये कोल्ड वार चलेगी जो है, कोल्ड वार चलेगी। हाँ, और जो है ये उसका इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाएगा जो है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कंपनी शिफ्ट कहाँ करेंगी। कहते तो सब लोग हैं, लेकिन हमें जो बताया, जो लोगों ने बातचीत हुई कि पता नहीं क्या सेंसर होता है जो उसके पास है वो कंपनी के लिए चालू करने के लिए, वो तो किसी भी देश में नहीं, थोड़ा बहुत वियतनाम में है, और जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ये थाईलैंड में है, वो चीजें जो है और जगह पे है ही नहीं। तो ये चीजें शिफ्ट इधर उधर होगा, लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी एटमॉस्फेयर चाहिए। और कहीं भी शिफ्ट जो होती हैं, अभी तो चाइना सबसे बड़ा था प्रोडक्शन हर एक का जो है, ग्लोबलाइजेशन में सारा प्रोडक्शन वही होता था, लेबर चीप थी। अब लोग कहते हैं कि ये शिफ्ट होंगी जो है। अब जब शिफ्ट होंगी तो दो तीन चीजें देखी जाती हैं जिस कंट्री में होगा। सबसे पहले चीज होती है कि मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत ही सिंपल हो वहाँ का जो, तभी आएंगी।
दूसरी चीज ये होती है कि एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव हो, ज्यादा मतलब वहाँ पे जो है क्या हो कि लड़ाई झगड़ा न हो, पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, वहाँ कंपनियां जाना चाहेंगी। तीसरी चीज सिक्योरिटी होनी चाहिए जो, तो ये जो देश जो प्रोवाइड करेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी तो है, शिफ्टिंग तो होगा, कोल्ड वार है तो शिफ्ट होगा, जो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये सारे जो इकोनॉमिक वो हैं इंस्टॉलेशंस हैं वो शिफ्ट होंगे, और इस तरीके से जो है एक तरीके से वर्ल्ड जो है फिर से जो है क्या एक तरीके से रीपोलराइजेशन जो है होगा, ये तो है जो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीनाक्षी, मेरा एक क्वेश्चन था सर से। हेलो। हाँ जी जी। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि विश्व पटल पे आप भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व पटल पे जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है ह्यूमन रिसोर्स। ग्लोबलाइजेशन का अगर दौर लें, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और चाइना की पॉपुलेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है कितना है 145 करोड़ जो, और हमारा 130 है, जो ज्यादा फर्क नहीं है, 15 करोड़ जो हम लोग पीछे हैं जो, लेकिन ये है कि उसके पास थोड़ा एरिया उसके पास ज्यादा है जो। तो विश्व पटल में भारत की यही स्थिति है कि एक तो भारत की जो इमेज है वो पीसफुल कंट्री की है जो वर्षों से, जो बारिंग सम जो टेम्परेरी जो उसको मैं नहीं मानता, लेकिन इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है भारत की वो क्या है, पीसफुल कंट्री, ये माना जाता है। दूसरी चीज जो है, भारत के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है अच्छे, जो सिर्फ इतना कि उन रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है हम लोगों को जो है, क्योंकि हमारे आयरन है तो उसका प्रोसेसिंग जो है ज्यादातर वहाँ चला जाता है जापान में जो है, वो चीजें हो के जो है ये थोड़ा जो है क्या होना चाहिए कि ऑनेस्टी थोड़ा पॉलिटिकल क्लास में अगर आ जाए, अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा हो नहीं सका जो है, अगर वो प्लानिंग को जो है बिल्कुल देश धर्म की तरह करें जैसे और कंट्री कर रहे हैं जापान और ये सब, तो निश्चित रूप से भारत जो है इसमें सारे गुण हैं जो है कि वो जो है लीड करे जो है अन्य देशों को, इसमें कोई दो राय नहीं, लीड करने की क्षमता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल वो अनसर्टेनिटी और जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेज होते रहते हैं उससे थोड़ी जो है प्रॉब्लम है। अदरवाइज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो यही है कि हम लोग पीसफुल होते हैं, जो इंडियन सभी लोग जानते हैं। मैं भी गया हूँ कई कंट्रीज में, जो है भारत की इमेज बड़ी अच्छी है जो, तो थोड़ा हम लोगों को भी वो होना पड़ेगा जो है, ठीक होना पड़ेगा जो, अगर विश्व हमारा पार्टिसिपेशन होना है, लीड करना है, करीब है, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर। प्रश्न लेते हैं 60 से 70 के बीच में कोई प्रश्न पूछना चाहता है, सीरियल नंबर 60 to 70। जी मैं बोलूं, मैं वकार मैम। पहले 67 वकार सर बोल लें। जी सर। मेरा भी 63। मैम मुझे भी पूछना है। जी सर, जी सर। 70। हेलो। हाँ सर, मैम 67, 63 देन 70। हाँ 67 पूछिए सर। ठीक है मैम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये कोरोना है, इसी नेचर का HIV एड्स वाला भी वायरस था, तो भी मैंने देखा कई बार न्यूज चैनल में आता है कि लोग इस तरीके के जिसको बीमारियां हो गई वो सामने आने से कतराते हैं, या जिसके पास जो अभी जैसे मेरे घर के सामने ही कहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेरी भी एक बार तबीयत जैसे फीवर आया या मुझे लगा कि खांसी वासी आ रही है, लेकिन हर आज मुझे डर लग रहा था कि मैं क्यों जाऊँ चेक करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी या उसको एक अलग तरीके से देखने लगती है कि ये बीमार हो गया। जैसे HIV एड्स से अगर किसी को ग्रस्त था तो उसको मतलब सोसाइटी, मैंने तो आज तक कभी किसी HIV एड्स वाले से मिला भी नहीं है, और कभी मैंने देखा भी नहीं कि ऐसे लोगों को सोसाइटी बड़ी इजीली कहता है एक्सेप्ट करती है
या जैसे कोरोना के भी कहता है केस में क्या है कि कोई किसी के टच में आ रहा है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है, उसका सैंपल लिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम लोग होते होंगे जो जाते होंगे, शायद हमारे जितना ग्रुप होगा इतने में से शायद कोई अभी नहीं गया होगा कि अपने से कोरोना का टेस्ट करा ले। तो यही है कि क्यों मतलब क्या इससे टेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे बीमारियां तो इतनी जल्दी सही नहीं होंगी, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत, और सर ने बताया भी था कि 80% क्या था बीमारियां नजर ही नहीं आती हैं, ये बीमारी है कोरोना में ऐसी है। तो अगर इस तरीके से कि सोसाइटी को आइसोलेट कर दे रही है, सोसाइटी अलग तरीके से देखने लग रही है, तो फिर एक तरह से तो फिर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम टाइप का है। तो सर इसका कैसे क्या है सब? इसका ऐसा है कि एक तो लोगों के अंदर फियर इतना है, और दूसरी चीज जो है मैसेज जो सोसाइटी में ठीक नहीं पहुंच पाया जो है। आपने देखा होगा कि कितने डॉक्टर्स जो सोसाइटीज में रहते थे जो है, उनको लोगों ने जो कहा कि यहाँ से निकल जाओ। सूरत में भी ऐसा हुआ है हमारे यहाँ कि लोग आ गए जो है कि आप कोरोना का जो है इलाज कर रहे हो, आप ये सोसाइटी में मत आओ जो। तो एक उसका एक फियर से हो गया है। अब उस फियर को देखते हुए अगर किसी को खांसी बुखार या जो भी सिम्टम्स है जो है वो बचना चाहता है, और पहले वो अपनी जो है क्या करता है जो है रेमेडी जो उसकी है अब उसके पास अवेलेबल है कि क्रोसिन ले लिया जो है, या खांसी का सिरप ले लिया जो है, और उससे बचना चाहता है, और उतने में तो बहुत देर हो जाती है जो। इसे तो इमीडिएट होना चाहिए। और दूसरी जो परिस्थिति है जो टीवी माध्यम है और ये सब जो दिखाता है जो कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या है, जो आपके सोशल मीडिया में बहुत आता है, वहाँ गंदा है टॉयलेट, एग्जाम्पल जो है देने पड़ेंगे कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर जो है आपके घर से अच्छे हैं, ये करना पड़ेगा जो, चाहे इसके लिए कोई भी कास्ट हो लगे जो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो बात की चीज है, ह्यूमन लाइफ इज मीनिंगफुल जो है, इकोनॉमी उतनी मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है वो जरूरत है इकोनॉमी जो, तो ये सोसाइटी में जो है पहले करना पड़ेगा जो है, ये मैसेज जो है जाना देना पड़ेगा जो। तो ये जो दुर्दशाएं हो गई एक्सीडेंटल हो या जैसी हो दो चार, उससे लोग डरने लगे हैं जो, और लोग जो है इसलिए जो है वो नहीं जाते जो। लेकिन जाना चाहिए जो है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है, दूसरे तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है व्यक्ति। फर्स्ट स्टेज के लिए तो हमारे पास रेमेडी है मेडिकल जो, लेकिन जब वो थर्ड में पहुंच जाता है तो उसकी रेमेडी तो कोई उसका वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, नहीं होती जो। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पे तो वो सपोर्टिंग मेडिसिन से कर देते हैं कि जुकाम के लिए जो है इन्फ्लुएंजा का जो है दवा दे दिया, जो फीवर का दे दिया, ट्रीट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो सोसाइटी में जो एक कह सकते हैं कि जो भ्रांति फैली हुई है जो है, उसको तो दूर करना पड़ेगा जो। सर मेरे घर के पास केस जो है बाहर फॉरेन में भी बहुत ऑब्जर्व किए गए हैं। चाइना में तो कोर्ट जो है डिसीजन नहीं दे पा रही थी, इतना डाइवर्स के एप्लीकेशन जो है, डिवोर्स के एप्लीकेशन इतने पड़ चुके थे कि चाइना जो है सर 3000 के समथिंग कुछ था सर, एक डाटा आया था ये। ठीक, अभी क्या होगा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया जो है क्या है, जो है पुरुष प्रधान जो है समाज है जो, और पुरुष जो है प्रधान होते हुए ज्यादातर पुरुष तो नॉर्मल कोर्स में जो है वो अपने कामों पे रहते थे, और शाम को जो है उनके दर्शन होते थे जो है, सब काम में व्यस्त रहते हैं ज्यादातर। लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से वो घरों में है, अब घरों में रहने की वजह से जो है उनका वो तो जागता ही है जो है प्रधानता जो है। बिल्कुल और उसके बिल्कुल दूसरी चीज महिलाओं में भी एक चीज जो है अब महिलाएं वो नहीं रही जो पुरुष प्रधानता दिखाता है, क्योंकि महिलाओं में भी जो है उनका एम्पावरमेंट, एजुकेशन जो है, और उनका जो है अपना सेल्फ ईगो जो है वो किसी उसमें कम नहीं, जो उनको उतना ही हक है जितना पुरुषों का है जो। कोई उसमें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। मैं तो मुझे लेकिन सर रियलिटी तो सर आप भी जानते हैं सर कि कितना एम्पावरमेंट और वो सारी चीजें हुई हैं। अगर ऐसी चीजें होती तो सर ये न्यूज़पेपर्स और जो नेशनल वुमेन कमीशन है और हेल्पलाइन नंबर्स है, बाकी सब चीजें सर इतना आगे बढ़ के कैसे काम करते सर। आप ये भी देखिए ना कि कहाँ पर इक्वलिटी कहाँ पर आ रही है सर, वो कहीं ना कहीं तो दिक्कत कर ही रहा है। इक्वलिटी इस वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ मिला है, लेकिन ये है कि मतलब इनफैक्ट जो रियलिटी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। एम्पावरमेंट है लेकिन वो इनडायरेक्ट एम्पावरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली
मैं बताता हूँ, बड़े बड़े जो है महिलाएं जो हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं जो है, वो नुलसी बाडिया जो है डायरेक्टर इतनी बड़ी, वो कह रही थी कि आज भी जो है मुझे अपने घर में जो है क्या है जो है खाना बनाना पड़ता है और बच्चों को तैयार करना पड़ता है। बताइए, इतनी बड़ी सीईओ जो है वो कहती थी कि खाना बनाना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है। तो इनफैक्ट जो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ केसेज ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि लॉकडाउन अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड को रोटी गोल करना नहीं आई है पूरी तरह से जो है। ये भी रिपोर्ट आई है कि अभी उनको इतना मतलब 40 दिन में अभी वो गोल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो ये भी दुखद और दुखद दोनों प्रकार की चीजें जो है दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो है कि अगर एम्पावरमेंट और इसे इक्वलिटी तो नहीं है जो महिलाओं को, क्योंकि सारे डोमेस्टिक वर्क जो है वो ज्यादातर महिलाओं को ऑफिस वर्क के साथ साथ जो घर का काम भी करना पड़ता है। ये एक्सप्लॉयटेशन है जो, और जो वर्क में नहीं है वो अनपेड वर्कर जो है, जिसका कोई उनको कुछ नहीं मिलता जो है, वो सारे करने पड़ते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन तो है जो, और हिंसा इसी वजह से बढ़ रही है जो, क्योंकि अब वो तो वही कंसंट्रेट हो, वही देखता है कि ये पत्नी क्या कर रही है, जो टीवी देख रही है तो भड़क जाएगा जो, ये है तो वो है जो है, साफ नहीं किया जो है। तो अभी न्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अल्कोहल की होम डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए। इट जस्ट केम राइट नाउ। जी। तो आपने जो दिल्ली का दृश्य बताया कि रूटीन में भी वहां तो धक्का मुक्की होती है, पढ़ापढ़ी होती है, तो ये अभी आया। लेकिन सर अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखिए सर, आपने जो बताया स्टिग्मा के बारे में, जो वकार साहब ने बोला कि लोग रिपोर्ट करवाने जानते हैं मुझे दिक्कत है, लेकिन रिपोर्ट करवाने नहीं जाते हैं। वर्कर है अपने डायमंड वर्कर सूरत से है, वो लोग देश में जा रहे हैं, अपने वहां वापिस जा रहे हैं, अब उनको पता है उनकी रोजी यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काउंसलिंग की कमी है, एक मास लेवल पे एवरीवेयर। अगर स्टूडेंट से रिलेटेड काउंसलिंग है, मेडिकल हॉस्पिटल के कोविड के टेस्ट के रिलेटेड काउंसलिंग है, ये जो मास माइग्रेशन हो रहा है, जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है, अगर उनसे, तो काउंसलिंग को हर प्लेटफॉर्म पे अगर प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है लोग, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज इज क्रिएटिंग अ हैवॉक, लोगों को ये नॉलेज। हाँ जी सर। ये दो लेवल पे है, एक तो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों लेवल पे इसका हो सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे मैंने क्या देखा कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, एग्जीक्यूटिव जो है, वो एग्जीक्यूटिव जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड लग रही है। जी सर। कंफ्यूज्ड इसलिए लग रही है कि एक तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने वाला है, जो इंडस्ट्री और ग्रीन एरिया और ऑरेंज में हम जो है इंडस्ट्री चालू करेंगे धीरे धीरे, मानते हैं कि नहीं? और उसको चालू करने के लिए क्या चाहिए, जो लेबर फोर्स चाहिए। बिना लेबर के जो है कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती जो है। तो अब लेबर जो चाहिए, तो फिर लेबर को माइग्रेट कर रहे हैं, जो क्यों नहीं रोका उन्होंने जो है। और वो भी 40 दिन आप वहां रख के, जब एंडिंग के आसार दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं तो नहीं कह सकता कि एंड होगा जो है, जो आसार दिखाई दे रहे थे उस टाइम जो है आप जो है माइग्रेट दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। अब उस माइग्रेशन में क्या है कि एक तो एग्जीक्यूटिव की जो है पॉलिसी वो कंफ्यूज्ड है, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो भी गवर्नमेंट ने कहा कि उनको सारी फैसिलिटी जो है वो क्या किया जाए, मुहैया उपलब्ध कराया जाए जो, तो उनको जो फैसिलिटी जो है ढंग से, आप भी जानते हैं, हम भी, जो सोसाइटी में होता है दिखाई कुछ देता है, थिंग्स जो दिखाई देती हैं वो होती नहीं है जो है। तो उनके पास जो है क्या खाने की प्रॉब्लम है जो, उनको जो है। प्रीति लता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज रामपुर से हूँ।
सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर बड़ी जो चिंता है हमें हमारे बीच में, और पूरी दुनिया में इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हम देखने में हमें हमारे सामने आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बदलाव जो हमें देखने में मिल रहा है कि वो जो हमारे विश्व भर के जो धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या यहूदी धर्म हो, तो उन धर्मों में जो कट्टरता जो की जो सीमाएं हैं उसके अंदर रहकर जो सामाजिक प्राणी व्यवहार करते हैं। और लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि वो जो जो उन्होंने नॉर्म्स और रिचुअल्स को अपने सेट किए थे, उसको इस महामारी के जब आने के बाद वो लोग उन चीजों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं हमारी मानवता को बचाने के लिए। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वैश्विक हमारी महामारी है, सभी देश इस में विज्ञान के साथ चलने को मजबूर कर दिया है इस बीमारी ने। और क्या ये समाज के जो धर्म की उपयोगिता है और जो विज्ञान और मानवता को सर्वोपरि हमारा समाज आगे इसको रख पाएगा? और जैसा कि आपने बताया था कि हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ना होकर ये चेंज इन स्ट्रक्चर होगा, तो ये स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर जो चेंज है, इसकी परमानेंट जो स्वीकार्यता हमारे समाज में बढ़ेगी, या फिर हमारा समाज उसी पैटर्न पर वापस आ जाएगा जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी? तो मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाह रही थी, क्योंकि आप एक समाज शास्त्री हैं और आपने समाज के में बदलते परिवेश को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। तो ये पैंडेमिक क्या हमारे समाज में जो अभी हम इस पीरियड में जो परिवर्तन देख रहे हैं, जिनकी उपयोगिता अभी हम समझ चुके हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है कि इस कट्टरता की, तो क्या ये हमारा समाज उसको परमानेंट रख पाएगा आगे भी? थैंक यू सर। देखिए, धर्म जो है सब अच्छा है, लेकिन धर्म के अंदर कट्टरता जो है वो जरा मतलब प्रॉब्लमेटिक है जो। और जहाँ तक जो है रिलीजन की बात है, तो आपने जैसे कहा कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूज जो है, पहले ज्यूज आए जो है, फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सेमेटिक रिलीजन है जिनका ओरिजिन जेनेसिस एक ही जगह से हुआ है। समझ रहे हैं? तीनों एक ही जी सर, सभी हाँ तीनों जी की सर, सभी धर्म जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके रिचुअल इस टाइप के हैं कि बिना हम लोग सोशल गैदरिंग के वो पूरे नहीं हो सकते। जैसे कि आप मक्का मदीना में देखें, वहां पर बंद कर दिया गया है जो है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा जो है तो ये और चीजें जी सर, एक इजराइल के जो मुख्य रबी डेविड लाउ हैं, उन्होंने लोगों को सलाह दी है, क्योंकि उनके यहाँ एक रिचुअल है कि जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको फिजिकली टच करें, स्पेशली अपने माउथ से। तो उस रिचुअल को भी उन्होंने इस समय कहा है कि भी आप इसको फॉलो ना करें। तो जब इस तरीके का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे धर्म के जो लोग हैं, जो शीर्ष पर हैं, वो अपना रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो फिर धार्मिक कट्टरता की जिनकी हमारे समाज को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उनको हम इस पीरियड में इस स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि उनकी अब जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। हालांकि धर्म जो है प्राचीन काल से ही मानव को एक मानव बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता चला आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं जो समय के साथ जिनकी उपयोगिता खत्म हो रही है, जो कि हम ये इस पीरियड ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि हाँ, ये चीजें हम धर्म में रहते हुए भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसको आगे उसको लेके जाएं, और जो चीजें हमें और भी धर्म में ऐसी महसूस हो रही हैं कि जिनकी उपयोगिता हमारे विकासशील समाज के लिए आवश्यक नहीं है, उनको हम छोड़ दें। जी सर। बिल्कुल जो है ये बात आप समझिए कि जब धर्म का जो ओरिजिन की जब बात हुई, सोशियोलॉजिस्ट एमाइल डर्कहाइम ने जो है जेनेसिस की बात की, तो उसने कहा कि धर्म जो है इनफैक्ट मनुष्य को किसी गॉड ने नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ही जो है गॉड क्रिएट किया और मनुष्य ने ही जो है रिलीजन बनाया। जो इसलिए बनाया था सिर्फ जो है सॉलिडरिटी मेंटेन करने के लिए, और जो है ग्रुप कलेक्टिवनेस के लिए, जो है ग्रुप कंसाइंस के लिए, जो है उस समय जब नेचर के करीब बहुत था मनुष्य जो है, तब उसे जो है उसके अंदर एक ताकत या एक जोश आने के लिए जो है जरूरत थी, वो धर्म ने पूरा किया। और इसका एग्जाम्पल देता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो क्या टोटम जो है
को जो है किसका सेक्रेड प्लेस मिल जाता है। जो चीज सेक्रेड है वो रिलीजन है, पवित्र जो है वो रिलीजन, जो है वो रिलीजन नहीं है। तो टोटम को पवित्र माने जो, और टोटम है क्या, उनके पुरखों का कोई फोर फादर है जिसने की आत्मा मर गई, वो बिलीव की ये पवित्र है और उस पवित्रता ने उसका सिंबॉलिक रूप ले लिया जो है, और वो गॉड हो गया, जो ईश्वर मान लिया उसको जो है। तो वहां से कहते हैं वो कि अब ये जो है रिलीजन को तो मनुष्य ने जो बनाया जो है, तो मनुष्य ने जब बनाया जो है तो किसके लिए बनाया था, पीस और हार्मोनी के लिए बनाया था। जी जी। और इसके लिए नहीं, क्योंकि इसका जो बेसिक जो ओरिजिन है वो यही था, पीस एंड हार्मोनी और सॉलिडरिटी जो लोगों में जो है एकता के लिए जो वो जेनेसिस से सोशियोलॉजिकल स्टडी इस चीज को बताती है। अब रही कट्टरता की बात जो आप कह रहे हैं कि ये सब जो हट जाए जो, तो ये होना चाहिए जो। कट्टरता तो किसी भी चीज की अच्छी चीज नहीं है जो। कट्टरता क्या था कि इसी कोविड में देख लीजिए जो है कि कितना कम्युनल डिवाइड हो गई सोसाइटी जो है। ये सर नमस्कार। हेलो हेलो सर नमस्कार, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवबंद। हेलो सर, मैं क्वेश्चन आपसे एक है कि जो आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, आप कहाँ से कहाँ से हैं? सर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवबंद सहारनपुर। तो मैं रणखंडी में बहुत काम किया हूँ, विलेज रणखंडी में जो। हाँ जी सर, वो पास में ही पड़ता है सर। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड एप्रोप्रिएट है सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ इंटरेक्शन के मीन्स बदल गए हैं, वर्चुअल है। फिर ये सर ये वर्ड जो इतना आजकल मतलब चला है, मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है इससे। तो सर आप ऑब्जेक्शन तो मुझे भी है, और अनफॉर्चुनेटली की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे सोशियोलॉजी वहीं से शुरू हो गया, वो अमेरिका से शुरू हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सोशियोलॉजी लेक्चर में बोला है। सर थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं सुन नहीं पाई इस लास्ट में। तो जी मैं तो सोशल फिजिकल भी नहीं, मैं ऑर्गेनिक डिस्टेंसिंग कहता हूँ। ऑर्गेनिक, डरखाइम ने ऑर्गेनिक शब्द यूज किया है। यस सर दैहिक दूरी जो है ये मैं यूज करता हूँ। यस थैंक यू सर। रतन सर जी मैम। सर हेलो। सर आपका क्वेश्चन था कुछ? हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कोविड-19 के डर से लोगों में आत्महत्या की दर बढ़ रही है, चाहे वो एकांतवास के कारण हो या किसी और कारण से, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट को जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके लिए कोई काउंसलिंग के लिए कोई नीति बनानी चाहिए? देखिए काउंसलिंग तो होना ही चाहिए जो है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी जो है चीज होती है, किसी भी बीमारी का हम क्या पता करते हैं? बीमारी ठीक करने के लिए काज न कारण, बीमारी का कारण क्या है? तो अगर उनके अंदर एलिनेशन, आपने कौन सा शब्द हिंदी का यूज किया था? अलगाव, एकांतवास सर, क्वारंटीन। एकांतवास अगर उनके अंदर हो रहा है, हेलो, तो जी सर, उस एकांतवास को दूर करने के कारण, उसका क्या सुसाइड करने का कारण यही है, एकांतवास, यानी समाज से और उसका जो सोशल बॉन्ड है वो टूट रहा है, वो अलग एकांकी अपने को महसूस कर रहा है। ही इज नो मोर अटैच्ड विद द सोसाइटी, वो बॉन्ड ढीले हो गए। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्ति में एलिनेशन हो ही न, एकांतवास न हो जो, तो वो काज जो है वो खत्म करना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसकी ग्रुप एक्टिविटीज बढ़ जाए, जो है ग्रुप पार्टिसिपेशन बढ़े, जो है वर्क पे जाए, वो लोगों के साथ भले ऑर्गेनिक डिस्टेंसिंग हो लेकिन काम करे, एक दूसरे को दूर से देखता रहे जो है, तो सुसाइड की रेट जो है कम हो सकती है। मात्र काउंसलिंग यहाँ पे सिर्फ नहीं काम करेगा जो है, क्योंकि ये सुसाइड जो है साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल प्रॉब्लम भी है जो है, नॉट सोशियोलॉजिकल। जो ये करना पड़ेगा, जो उसके सारे वो तरीके करने पड़ेंगे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा जो है क्या हो, सामूहिक क्रियाएं बढ़े उसकी, जो है एकांतवास उसका खत्म हो जो।
तो काउंसलिंग भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि उस कारण को ही खत्म कर दिया जाए जिससे सुसाइड हो रहा है। तो एकांतवास से सुसाइड हो रही तो उसको खत्म करना होगा एकांतवास को भी। I want to ask about the Marx vision of classless society. Are we going towards that? It is a myth. It is myth, classless society, because you know social stratification is universal phenomenon. How you can think the classless society? Even in But Russia, since long back to our students that there will be a society which Marx called classless society. I would like to say something, sir. It's a utopia, ma'am. It's a utopia, just like Ram Rajya, just like classless society. It's a utopia, but really, ये बस एक hypothetical है. The division of labor is related with the social inequality, because people are engaged in different kinds of labor. Okay, so and division of labor is must just to fulfill the requirement of the individuals जो in the given situation जो. तो आप कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिटेरियन सोसाइटी होगी? जो इक्विलिटेरियन नहीं हो सकती जब डिवीजन ऑफ लेबर इनइक्वल है, तो फिर कैसे हो सकता है? अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तभी तो लोगों की आवश्यकता पूरी होगी। अगर आपको इक्वलिटी लानी है तो सभी को एक काम में लगा देंगे तो लोगों की आवश्यकता नहीं पूरी होगी और सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ फॉर एकेडमिक पर्पज, और उसका जो आर्गुमेंट है इट्स ओके, और एक्सपेरिमेंट भी हुआ वो भी ठीक है, रशिया में हुआ जो है उस समय जो है जब टूटा नहीं था जो है यूएसएसआर था लेकिन वहां पे भी इनइक्वालिटी थी। जो पोलित ब्यूरो के लोग थे दे हैव मच पावर रादर देन द अदर इंडिविजुअल्स जो है इन यूएसएसआर जो है। तो वहां पे टोटली जो है आप ये इक्वालिटी की बात नहीं, हाँ उसके गैप को कम कर सकते हैं। उस रूप में मार्क्स जो है सिग्निफिकेंट हो सकता है जो है कि जो क्लास के उसमें डिफरेंट क्लासेज में जो गैप है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। Okay, thank you so much sir. Thank you sir, thank you ma'am. और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? अब मुझे लगता है सभी का बहुत अच्छे से सबने इंटरैक्ट किया। कोई बोलना चाह रहा है? यस मैडम। हाँ जी। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। अमित वर्मा जी 7 जी बोलिए। बोलिए सर। मेरा एक प्रश्न है अमेरिका, मैं थोड़ा अमेरिका के पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में इतने लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर भी हैं, वहाँ भी लोग अपोज कर रहे हैं लॉकडाउन का। हमारे इंडिया में अगर करते हैं तो समझ में आता है कि अवेयरनेस कम है, अर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अमेरिका में भी इसको अपोज कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके रिगार्डिंग? आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकन सोसाइटी इज ए फ्री सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी इज नॉर्मेटिव सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल आल्सो। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े लोग जो कहते हैं उसको जरा हम लोग ज्यादा मानते हैं जो है। और यहाँ की सोसाइटी में अगर पेरेंट जो है के सामने सन सिगरेट पी ले तो उसे सिन माना जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाइल इन अमेरिकन सोसाइटी जो है पेरेंट, फादर एंड सन स्मोक टुगेदर, जो इतनी फ्री सोसाइटी है जो। तो जहाँ पे इतनी फ्रीनेस है जो है, तो वो लॉकडाउन में एक घर के अंदर बंद होके जो है नहीं रह सकते जो, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा है जो है। इंडिया में क्या है, नॉर्मेटिव है, हम बड़ों का मानते हैं, हमने हमारी सरकार ने पीएम ने कहा है हम घर के अंदर रहेंगे जो, ये है। तो वो बेसिक जो वैल्यू जो है वो दोनों में अलग है, दोनों सोसाइटी में जो है। इस वजह से लॉकडाउन का ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि वो मुक्त समाज घरों के अंदर नहीं चला करते जो, रन अवे वर्ल्ड जो है, समझ में आया, एक जगह नहीं रह सकते जो है, वो मूव करेंगे इधर से उधर जो है। वो तो मूव कर रहे थे जान बचाने के लिए जगह मैक्सिको की तरफ जो है, और जबकि मैक्सिको के लिए जो है वो बना के दी गई थी दीवार की इनको आने नहीं देना है जो,
हैं। और जब न्यूयॉर्क में फैला तो लोग भाग रहे थे, तो वो लोग रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हम गार्डन में जाएं, हम जो है अभी देखिए इस कोविड पीरियड में वो बहुत पुराने जो बंद हो गया था ड्राइव इन सिनेमा जो है वो चालू हो गया वहां पे जो अमेरिका में। रोक ही नहीं सकते लोग। रेस्टोरेंट जो है, सिनेमा, मूवी जो है, पार्क, ये कल्चर है, वो वे ऑफ लाइफ है जो। वाइल इन इंडिया जो है वी आर मोर ट्रेडिशनल, इंडिया इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, हम दोनों में है जो मॉडर्निटी विद इन ट्रेडिशन जो है हमारे अंदर है। हैं हम जो है क्या करेंगे, हैट और टाई हुई लगा के हनुमान जी का मंदिर होगा तो टाई टोपा हटा के जो साक्षात जो वो कर लेंगे जो है। तो हमारे अंदर दोनों चीजें हैं जो है, जो कि अमेरिकन सोसाइटी में नहीं है, इसलिए वो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। उसको रोक इतने दिन से रोक। सर मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा से मंजू शुक्ला हूँ। मेरा अभी सर ने जो अमेरिका के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा उसी से संबंधित मेरा भी है कि जीवन सभी को प्यारा है। एक छोटा सा कीट पतंगा भी अगर उसको ये एहसास हो जाए कि मेरे पीछे कुछ मेरी मौत हो सकती है, मैं किसी के पाँव के नीचे आ सकता हूँ, तो वो भागता है। तो ऐसा क्या उनके अंदर है जो मौत का उनका डर निकल गया और वो ये जानते हुए भी कि बाहर जाएंगे तो उसके शिकार हो सकते। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो उनके भीतर से मौत का डर को निकाल दिया है जिसने? आपने दिल्ली में देखा वाइन लीकर लेने के लिए मौत का डर कैसा निकल गया था। हेलो सर, वो हमारा तरह से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक लंबा अनुभव है ना उसका, तो वो जल्दी खत्म नहीं होता है इसलिए। पर किशोर ऐसा नहीं लगता है कि जब ये हमारे यहाँ हम कोरोना को लेके बहुत सेंसिटिव है, हमारे सामने वो आंकड़ा नहीं है अभी। उनका इंटरेस्ट होता उसको रोक नहीं सकते। ह्यूमन क्रिएशन में वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो जो प्लास्टिक मनी और ये सब है, तो उनके जो पार्क्स और ये सब जो बने हुए हैं, जो डिफरेंट इंटरटेनमेंट के जो है मीन्स हैं जो है, उसको नहीं रोक सकते ह्यूमन क्रिएशंस को। वो घर के अंदर नहीं रह सकते। जो वो भले उनको मनी मिलती है 15 दिन और वो प्लास्टिक जो मनी मिलती है उसको खर्च वर्तमान में जीना चाहते हैं, यही सिर्फ नहीं है, उसके साथ उनके जो वैल्यू सिस्टम में है क्या कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं ह्यूमन क्रिएशन पे जो। और ह्यूमन क्रिएशन उनको घर के अंदर नहीं मिलेगा, कहाँ मिलता है? जो घर के बाहर जो चीजें मिलती है, ये उनके वैल्यू सिस्टम में है जी। अब मुझे लगता नहीं अब कोई प्रश्न बाकी है और समय भी हो गया है। मैं आज की जो चेयरपर्सन है हमारी डॉक्टर आभा मैम, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सर को बुलाती हूँ औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आभा मैम प्लीज। थैंक यू मीनाक्षी। हमारे 1 वीक ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े प्रोफेसर परवेज अहमद अब्बासी सर को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने कोविड-19 के जो कारण हैं, सामाजिक मानदंड किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं और हम समाज में किस प्रकार से रहेंगे, सरवाइव करेंगे, बहुत ही सरल और व्यवहारिक भाषा में हमें समझाया। और बहुत ही जितने भी हमारे साथियों ने क्वेश्चन किए उनके सबके जवाब भी इतनी व्यवहारिक भाषा में दिए जिसे सुन के भी अच्छा लगा, जो हम बिल्कुल अपने मन में उस प्रकार से ही सोचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को भी सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग ना कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े और भविष्य में भी मैं कामना करूंगी कि आप हमारे साथ ऑनलाइन किसी भी वेबिनार में जुड़ें और हमारा मार्गदर्शन करें। इसके साथ ही मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या जी का भी धन्यवाद करूंगी। उनके सफल निर्देशन में ये प्रोग्राम जो है संचालित हो रहा है। और इसके साथ मैं अपने अनुज भ्राता कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर DC शर्मा जी का भी धन्यवाद करूंगी, जो समय समय पे हमें मार्गदर्शन देते हैं। कोर्स कन्वीनर डॉक्टर किशोर जी का, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी का, इसके साथ ही एंटायर टीम शिल्पी, नेहा, मीनाक्षी, अरविंद, आजाद, आलम, सिद्दीकी, इन सबका धन्यवाद करूंगी। और आज की मेरी रिपोर्टर सुशीला का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि वो रिपोर्ट अच्छे से बनाएंगी। और सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, हमारे साथ जो बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक वर्ग के लोग, हमारे रिसर्च स्कॉलर, इन सभी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी कि बहुत ही सहज भाव से सबने सुना और अपनी क्वेरी सर से करी और सर ने बहुत ही अच्छे से उनका जवाब दिया। तो मैं सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
और 2 लाइनों में अपनी बात को कहूंगी मैं सर, आपको समर्पित हैं। अब्बासी सर सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। सर मैं 2 लाइनों में आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू सर, आप हमसे जुड़े। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। किशोर सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी मैम, पार्टिसिपेंट से? बिल्कुल बिल्कुल